Good morning, students. This is Surendra Yadav, IG physics teacher. Today, I would like to say something about very important example which is related to electric force या Coulombian force or electric field. This question is very important for board exam. तो क्वेश्चन देखते हैं what is given in questions and how we will solve. तो look the question. Question number this: an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to raise 4 Newton per coulomb. In figure number 1, the direction of the field is reverse, keeping to the magnitude of uncharged, and a proton falls through the same direction. In figure number 2, you can see. Compute the time falls in each case and contrast the situation of that of free fall under the gravity. What is the meaning of these questions? In these questions, two figure is given that you can see in figure number 1, electric field is upward direction, and if you see the figure number 2, the electric field direction is downward. And figure number 1 have given that electrons come downward, and second have a plus E given that, means this proton is fall downward. This is given that. Suppose that here this height is small h and this value is given that. We want to find the total time of electron from this portion to this side, means downward, how many times he will take to reach the electron in bottom of that surface, and same way proton in which time this will be reached to bottom. Okay, so we want to find the time duration of electron and proton, and we will compare the gravity of proton या any values we want to find in later on. Okay, तो what given that, क्वेश्चन को समझ में आया? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास दो फिगर बनाए गए हैं, जिसमें एक पहले में फर्स्ट फिगर में इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है जो डाउनवर्ड गिर रहा है, और दूसरे में प्रोटॉन बनाया गया है जो डाउनवर्ड है। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट फिगर में है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि सेकंड में प्रोटॉन के लिए डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा, जबकि H दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो भी दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कितने समय में नीचे आएगा वो हमें बताना है। क्लियर हो गया? स्टार्ट करें, चलो ठीक है। तो अब हम जो दिया गया है विच वैल्यू इज गिवन दैट, उस पे हम चर्चा करते हैं। पहले फर्स्ट क्या दिया है? हाइट दी गई, H इज गिवन दैट, कितना है? 2 into 2 नहीं है, ये है, दिस इज हाइट। कितना दिया गया है? 1.5 सेंटीमीटर। आई विल कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। 1.5 10 to raise minus 2 meters. Okay, and electric field given that E vector कितना दिया है वो? What is value of this? 2 into 10 to raise 4 Newton per coulomb. Okay, now can you see what is the mass of electron? अब ये आपको याद होना चाहिए, ME, mass of electron not given in your question, but without gravity mass of electron you can't find the values. तो ये आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, 9.1 10 to raise minus 31 kg। अगर यही प्रोटॉन के लिए कहें तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिखें? 1.67 10 to raise minus 27 kg। अच्छा ये बताइए चार्ज पे कितना होता है? प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पहले लिखते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा?
नहीं बताओगे? ई, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, कितना होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, प्रोटॉन के लिए भी यही होगा और इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा, बस डिफरेंस इतना है कि प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। यहाँ मैग्नीट्यूड हमें निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1.5, मतलब h दिया गया, कितना दिया गया है ये मेंशन है, लिख सकते हो आप 1.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें बताना क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितने समय में यहाँ पे पहुंचेगा। अब समय से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला कौन सा लगेगा। जैसे आप लोगों को पता है कि फोर्स का फार्मूला, कितने लोगों को पता है, F = क्या होता है, ma होता है ना, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। अगर यही बात करते हैं हम कि अगर फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए कहें तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमें फोर्स निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, F यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसको डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, me और ae। me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ae मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, सही ना। हम क्या निकाल सकते हैं, ae क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखे बोलो, क्या लिखें, F बाई क्या, me। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, पक्का, चलो ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे लिखते हैं। एक्सेलरेशन हमें मिल गया F/me, लेकिन हमें F तो दिया नहीं गया, क्या दिया है, E दिया है। तो एक फार्मूला होता है F = EQ QE या फिर E। ओके, तो F = E कैपिटल E। अब हमें निकालना क्या है, F की वैल्यू। तो F की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AE = E, चाहे E लिखो या Q लिखो, बोथ आर सेम, ME हुआ। तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया, इसका नाम लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अच्छा ठीक है, लिखो, नहीं है तो अब हम इसको लिखेंगे। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी बॉडी, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसमें मोशन हो रहा है, और मोशन का एक इक्वेशन होती है, आपको पता होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है सभी लोगों को, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, याद है? कितने लोग याद, बताओगे? अच्छा, बताओगे नहीं, बहुत अच्छी बात है, भूल गए हो। अच्छा, तो मैं बता देता हूं। पहली क्वेश्चन आपने पढ़ा था B = U + AT, यस। हाँ, सेकंड क्या पढ़ा था, S = U2 + UT + ½ AT²। थर्ड कौन सा पढ़ा था, B² - U² = 2AS। यही 3 इक्वेशन थी। अब इन तीनों इक्वेशंस में हमें अप्लाई कौन सा करें, हमें क्या निकालना है, टाइम। तो हमें ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसमें हमारी सारी वैल्यूज आए जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप, अगर हम पहले इक्वेशन की बात करते हैं, लिख देते हैं एक बार, फिर इसके बाद हम रफ कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है B = U + AT, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, S = UT + ½ AT²। तीसरा कौन सा है, B² - U² = 2AS। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, T निकालना है। हमारे पास है क्या, AE है, ठीक है। T निकालना है तो T जरूरी है। अगर कोई भी बॉडी ऊपर से मूव हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जिस वेलोसिटी से वो जाती है वो फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ना तो हमें इनिशियल वेलोसिटी, तो अगर हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा U = 0। लेकिन B तो हमें दिया नहीं गया, V दिया नहीं गया, तो हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है जहां से, जिसके बेसिस पे हम T की वैल्यू निकाल ले। हमारे पास AE है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी है हमें हमारे पास है। तो इन तीनों इक्वेशन को देखना है कि कौन से अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ T तो है, लेकिन यहाँ पे H नहीं है, कितनी हाइट से आएंगे,
तो ये इक्वेशन हम नहीं लगा सकते। तीसरी इक्वेशन को देखिए, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as टाइम हमें निकालना है, इसमें टाइम ही नहीं है तो ये भी नहीं लगा सकते। अब लगा कौन सकते हैं, सेकंड वाली। आप देखिए हमें h दिया गया है क्योंकि h हमारे पास है, u इनिशियल है 0 है और यहाँ पे ae भी दिया है, टाइम हमें निकालना ही है तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। पता चल गया क्यों सेकंड लगाएंगे, पहला दूसरा तीसरा क्यों नहीं लगाएंगे। ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन देख के, क्योंकि अभी तो आप देख के कर लोगे लेकिन क्यों यूज कर रहे हैं हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये क्लियर हो गया, हमें सेकंड इक्वेशन क्यों यूज करनी है। तो लिखिए इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं और उसके बेसिस पे क्या निकालेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टी की। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से क्या लिखेंगे, अब इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसको, अगर इस इक्वेशन के लिए कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे h हो जाएगा, u की वैल्यू क्या आएगी 0 होगी इंटू टी प्लस हाफ ए ई और यहाँ पे टी ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा h इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए ई टी ई स्क्वायर। ओके, अब हम क्या लिखें आगे, हमें निकालना है टी ई स्क्वायर। तो टी ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, h बाई 2, 2 उधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ए ई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कहें टी ई तो क्या हो जाएगा, ये रूट क्या लिखेंगे 2h बाई ए ई। ठीक है, तो ये क्या है टी, तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखते हैं हम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टाइम रिक्वायर्ड by electron to fall through the distance क्या है इसमें, what is distance, h है ना, h is given at, क्या लिख सकते हैं, अभी आपने लिखा था t इक्वल टू क्या लिखा था, बोलो भाई क्या लिखा था, अरे 2h बाई ए ई लिखा था। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। अब 2 में हम क्या करेंगे, इस ए ई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, टी ई इक्वल टू रूट 2h बाई ई बाई एम ई। ठीक है, तो एम ई कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आप, implies that t इक्वल टू रूट 2h m e बाई ई ई। ओके, ये इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, इतना लिख लिया। देखिए अब इसकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ h m e। तो चलो लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी पुट करना है, h की, m e एम बड़ा लिखो, m e एंड कैपिटल E इन इक्वेशन नंबर 3 बी गेट। ओके, अब हम ऊपर लिखते हैं दूसरी लाइन में। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बताना आपको ही है, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए बताइए, टी ई इक्वल टू
रूट में लिखना है, और फार्मूला तो आपने लिखा ही है, क्या है 2 है, h की वैल्यू कितनी है 1.5 10 टू रेज -2, me की वैल्यू कितनी थी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ भाई, अच्छा हाँ ठीक है 9.1 10 टू रेज -31, गुड। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ई, तो ई की वैल्यू कितनी है 1.6 10 टू रेज -19, और कैपिटल ई की वैल्यू ये आपके सामने है, कितना है 2 इंटू 10 टू रेज 4 बराबर। अब इतना कितने लोग इसके कैलकुलेशन कर पाएंगे, सभी को कर लेना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए, ऐसा नहीं एक लोग कर तो सब लेंगे, चलो ठीक है, जो कर सकते हैं वो भी, जो नहीं कर सकते हैं वो दोनों लिखेंगे। ये 3 हो जाएगा, तो 9.1 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -33। पहले इसको सॉर्ट करने की कोशिश करिए, जो पावर में है पावर में इसको चेंज करिए, जो कैलकुलेशन है इसको, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.2 10 टू रेज कितना हो जाएगा -15, ठीक है। अब इसको ऊपर लेंगे, कहाँ लेंगे, अब हम इसको रूट में ही लिखेंगे, क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 3.27, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, और डाउनवर्ड में क्या आएगा 3.2 ही होगा, और इसकी वैल्यूज क्या आएगी, डिवाइड करिए इसको, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -33 प्लस 15, ठीक है। ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि कभी कभी गलती कर देते हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है, मिसिंग नहीं करना है कुछ भी। तो अब यहाँ पे आ गई वैल्यूज 27.3 अपॉन 3.2 एंड 10 की पावर कितनी है, अब 33 में से 15 घटा दीजिए आप, तो कितना होगा 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 8 होगा, और 2 में से 1 है कितना होगा -18 होगा, क्या होगा -18। इतना क्लियर हो गया। जब इस वैल्यूज को आप बाहर लोगे तो इसका आधा हो जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यूज आती है डिवाइड करिए, अगर 3.2 से डिवाइड करिए तो जो वैल्यूज आती है वो आपको लिखना है, ठीक है। अभी तो मैं डायरेक्ट दे देता हूँ 27.3 बाई 3.2, कैलकुलेट करिए, जो कैलकुलेशन है फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, और ये 10 टू रेज -8 9 हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यूज आएगी क्या आएगी बताइए, कितना आएगा, नहीं बताओगे, हाँ कैलकुलेट करो, करिए जल्दी करिए, कैलकुलेटर यूज करिए कैलकुलेटर का, 27 डिवाइड बाई 3 फिर स्क्वायर रूट ऑफ दैट, तो कितना होगा, कितना 2.9, अच्छा तो क्या लिखें 2.9 इंटू 10 टू रेज 9, ये क्या आएगा किलोमीटर, मीटर क्या आएगा सेकंड आएगा, क्या आएगा, अरे भाई टाइम है तो सेकंड आएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते। ये तो रहा इलेक्ट्रॉन का जो है टोटल टाइम, यहां से यहां तक फॉल होने में लगेगा, ओके क्लियर। अब हमें दूसरा प्रोसेस करना है, यही प्रोटॉन के लिए भी करना है, तो ये लिख लिया आपने, चलो ठीक है रब कर दे, गुड। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, जिस तरह से हमने टीसी की वैल्यू निकाली थी उसी तरह से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टीपी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, टीपी की। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम स्टार्टिंग क्या लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चालू करना, क्योंकि प्रोटॉन जो है रेस्ट पे है, पहले फिगर में हमने उसका टाइम निकाल दिया, क्योंकि हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में लिखा गया है, कहां गया भाई, कंप्यूट द टाइम फॉल टू ईच केस, तो पहले केस का हमने निकाल लिया, अब सेकंड केस प्रोटॉन के लिए निकालने हैं, वो भी कितने समय, टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोटॉन टू fall through so the distance h is
given UGH, ठीक है, to fall through the distance h is given। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जहां पे t था क्या लिखेंगे, TP इक्वल टू, इसकी वैल्यूज को लिखेंगे 2HMP, जहां पे ME था वहां क्या लिखेंगे MP, और ये वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट, बदल रखिए, तो 2 आएगा। h की वैल्यू क्या थी 1.5 10 to raise -2, और इसकी वैल्यू क्या थी, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 to raise -27 अपॉन, ये लिख दो जो था 1.6 इंटू 10 to raise -19 इंटू ई की वैल्यू है 2 इंटू 10 to raise 4। अब इसको हमें करना है सॉल्व। चलिए आप लोग भी हेल्प करिए मेरी, कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई करिए 1.67 इंटू 3। तो अब हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन करने में इसकी वैल्यू क्या आती है 1.673, ये कैलकुलेट करते हैं और ये लिखते हैं, क्या लिखें, इसको मल्टीप्लाई करिए 3 7 जा 21 होता है, 3 6 जा 18 होता है, और ये हो जाएगा 20, और 3 1 जा 3, ये 5 पॉइंट इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3.2, ठीक है। और इसको लिखेंगे 10 की पावर कितना लिखेंगे 29, और 15 उधर चला जाएगा, तो 29 प्लस 15, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, कैलकुलेशन आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा। हम इसको क्या लिखेंगे 5.101 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10 to raise -14। तो हम क्या लिख पाएंगे, इसको 14 को बाहर करेंगे तो रूट में आ जाएगा, इसकी वैल्यूज आएगी 5.01 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10 to raise -7, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करिए जल्दी से आप, कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर वाले स्टूडेंट जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि प्रोटॉन कितने समय में पहुंच जाएगा, कहां पे, सरफेस पे। तो चलिए हम निकाल रहे हैं टीपी की वैल्यू आई, कैलकुलेट किया कितना 1.29, अच्छा ठीक है 1.3 लिखते हैं, ठीक है 1.3 10 to raise -7। प्रोटॉन कितने समय में पहुंचेगा 1.3 10 to raise -7 सेकंड में। ये तो हमारा क्या था, कंप्यूट द टाइम फॉल टू द ईच केसेस हमारा निकल आया। अभी क्या है, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। तो फ्री फॉल होगा कि नहीं होगा वो हमें देखना है। तो प्रोटॉन के लिए हम एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या निकालेंगे, हमें ग्रेविटी निकालेंगे। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है, पता है ना, अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 होती है। अब हमें देखना है कि प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है। तो हमने फार्मूला लगाया था AP इक्वल टू क्या था, E कैपिटल E बाय MP, ये फार्मूला था ना, अभी निकाला था। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा 1.6 10 to raise -19, और आएगा E की वैल्यू कितनी है बोलो, अभी निकाला था, बुक में है ना भाई, ये 2 इंटू 10 to raise 4। प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 to raise -27, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, अब इसको ऊपर लाएंगे, ये 15 हो जाएगा, ये आएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 1.67, और ये हो जाएगा 10 की पावर -15, और ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 to raise 27। तो हम क्या लिखेंगे AP इक्वल टू, इसकी वैल्यूज को इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 12 15 12 12 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 पॉइंट कितना आ रहा है, हाँ सॉल्व करिए 3.2 डिवाइडेड बाय 1.67, हाँ कितना 1.9, अच्छा 1.9, ये कितना होगा 10 की पावर 12, क्या आएगा सेकंड आएगा। अरे भाई एक्सेलरेशन है तो क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखिए प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 1.9 10 to raise 12, और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कितनी है G इक्वल टू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब आप कंपेयर कर लीजिए कौन ज्यादा है। बता रहे हैं प्रोटॉन का जो हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वो कितना है 1.9 10 to the 12, बट ये कितना है 9.8। उसके मुकाबले कितनी ग्रेविटी है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी की सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज वेरी हाई और उसके मुकाबले में ग्रेविटी की वैल्यू कुछ भी नहीं है। देख सकते हो ना, ये 10 to the 12 टाइम है, जबकि 1.9 है, 9.8 है। ये अप्रोक्सीमेट कितना है 10 है और ये अप्रोक्सीमेट हम 2 लिख सकते हैं। तो ये इसका 11 टाइम ज्यादा बड़ा है, इसका एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो ये कंप्यूट हो गया, ये कंपेयर भी हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। तो आपको यहाँ करना पड़ेगा, जो इस बार एग्जाम में आया था वो टीपी तक आया था 3 मार्क में, टीपी इक्वल टू 1.3 10 to the -7 सेकंड। जो 2012 में 2020 में अभी मार्च की एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये इतना करने पे आपको 3 मार्क मिलेंगे। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था अंडर ये यहाँ से कंट्रास्ट टू द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी, ये नहीं था क्वेश्चन, 3 मार्क में था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कर भी लोगे आप लोग। ठीक है, तो इसको लिख डालिए। ओके, थैंक यू।